پر شفا بخشتا ہے۔ اور جہاں بھی معجزات ہوئے ہیں، جہاں بھی خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، وہاں کلام نازل ہوا۔ کلام بہت خاص ہے اور ورشپ بھی بہت خاص ہے۔ ان دونوں کا بہت ایسا تعلق ہے خدا کی پریزنس میں، خدا کی حضوری میں، خدا کی قربت میں، خدا کی اناؤنٹنگ میں، خدا کے مسا میں۔ جب یہ دونوں نہیں ہوں گے ساتھ، آپ کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ تو لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم لکھا ہے کہ نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اگلی آیت لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے اندر جو آج ہم سیکھیں گے وہ صلیب ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر صلیب پہ مختلف طریقے ایجاد کیے جاتے تھے۔ ضرب کا بھی طریقہ استعمال کیا گیا تھا، ویسی کراس ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ جو پیچھے کراس ہے یہ بھی استعمال کی گئی تھی۔ لیکن بائبل مقدس کی روح سے، خدا کے کلام مقدس کے اندر آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ بیسیکل ہے کیا چیز، اس کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ آج کل میرا ٹاپک یہ ہے کہ صلیب کی قدرت، اور صلیب کے لیے جو لفظ اردو میں استعمال ہوئے ہیں وہ 3 لفظ استعمال ہوئے اردو میں۔ جو اردو لینگویج کے اندر یا اردو زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے، پہلا لفظ ہے سولی، صلیب نہیں آیا، پرانے عہد نامہ کی بات کر رہا ہوں۔ لفظ سولی ایک، پھر اس کے بعد دار، دال الف ترے، دار، سولی دار چلیپا، سولی سولی دار چلیپا، یہ 3 لفظ صلیب کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ لفظ صلیب پرانے عہد نامہ کے اندر لفظ صلیب نہیں ہے، یہ لفظ سولی استعمال ہوا ہے۔ اور بیسیکل جو اس کا مطلب ہے یا اس کا میننگز ہے وہ ہے خاص طور پر ان کلاموں کو یا ایسا بدترین ایسا ہے دشمنوں کو، بدترین ایسا مجرموں کو جنہوں نے شریعت کے خلاف، خدا کے خلاف، آئین کے خلاف، خدا کے عہد کے خلاف، خدا کی باتوں کے خلاف، خدا کے رحمہ کے خلاف، خدا کے لباس کے خلاف، خدا کی خدا بندیت کے خلاف، خدا کی الوہیت کے خلاف، خدا کی طہاریت کے خلاف، یا خدا کی پاکیزیت کے خلاف، یا خدا کی اناؤنٹنگ کے خلاف، یا خدا کے مسا کے خلاف، یا خدا کی ساتھ کے خلاف، یا خدا کی کردار کے خلاف، یا خدا کے باتوں کے خلاف گناہ کیا ہو، اس کو صلیب دیا جاتا تھا۔ لیکن بائبل کے اندر یہ لفظ میں بتا چکا ہوں، پرانے عہد نامہ کے اندر صلیب نہیں ہے، لفظ سولی ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ درخت پر ایسا لٹکایا جانا، درخت پر ایسا لٹکایا جانا، یہ صلیب کی تعریف ہے۔ یہ صلیب پرانے عہد نامہ کے اندر ہے، اور پرانے عہد نامہ کے اندر جو لفظ ایسا ہے میں نے بتایا ہے صلیب نہیں ہے۔ لیکن جب نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر لفظ صلیب جو ہے سولی نہیں، اٹ مینس وہ نہیں، لیکن صلیب، اور یہ لفظ 56 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور نئے عہد نامہ میں آیا ہے۔ اور بائبل کے اندر اس کے لیے جو خاص ایک لفظ ہے وہ یہ ہے اس مجرم کو صلیب کو پر سہ لٹکایا جانا جس نے خدا کی ذات کے خلاف یا اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے کے لیے ٹھہرایا ہے، اس کو جو ہے وہ ایسے ہے لٹکایا گیا۔ اصل میں آج ہم سیکھیں گے یہ صلیب کا رواج کہاں سے ہے، یہ صلیب آئی کہاں سے، یہ صلیب کا طریقہ کار جو تھا یہ کہاں سے آیا۔ صلیب جو تھا، اور میں نے بتایا آپ کو، اور میں ابھی آپ کو بتانے لگا، اس بات کو لکھ سکتے ہیں آپ، یہ صلیب کا رواج جو تھا یہ فنیکی ایک سامی مذہب تھا، اور جو اپنے آپ کو خدا کے ایسے نزدیک ملاتے تھے، لیکن یہ فنیکیوں
और फिर ये जारी होते हुए दूसरी कौमों ने इसको अपने अंदर लिया, और लेने के बाद ये चलता चलता यहूदियों तक पहुंचा और रोम के अंदर आया, और रोम से यहूदियों ने इसको एक्सेप्ट किया, और यहूदियों ने भी इसे एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, और जिसके ऊपर मेरे और आपके आका सैयदना रब्बाना यीशु मसीह को बशरीफ दिया गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है, खुदा के कलाम ये सिखाते हैं कि जब यहूदियों ने इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, तो इससे बेशतर जब सलीब दी जाती थी, जब क्रॉस पे ऐसा है लटकाया जाता था, और जब किसी को, और पहली तो बात यह है कि उसका तमाम तर जो था बैलेंस उसका जब्त किया जाता था, उसको था उसका तमाम हुकूमत उससे अपने कंट्रोल में लेती, कंट्रोल में लेने के बाद फिर उससे सलीब लेती। लेकिन सलीब से पहले एक बहुत बड़ा दावा होता था, और वो अदालत होती थी सदरे अदालत। उसको यहूदी लैंग्वेज के अंदर उसे यहूदी कैलेंडर के मुताबिक या यहूदी रिवाज के मुताबिक उससे सदरे अदालत कहा जाता था। ये अदालत 70 उलमा पर मुश्तमिल होती थी। कितने बार मैंने बताया था, दिखाया कि काउंसिल के अंदर उलमा कितने थे? कितने? कुछ बोलो कितने? नकली कर लो, और 70 ही सी। कितने सी? जहां से ये रोज़ों का स्टार्ट हुआ है, यहाँ से रोज़े, ये ईदें, ये ईस्टर, ये क्रिसमस, ये तमाम त्यौहार निकले हैं। तो उसकी निकाया की काउंसिल के अंदर जो थे 325 ऐसा जुलाई के अंदर वहाँ जो बिशप जो लोग थे, जो ईमानदार जो थे, जो लीडर जो थे, और जो रहनुमा जो थे, वो कितने थे? वो कितने थे? वो भी 70 थे। कितने थे? और वो भी 70 थे। लेकिन ऐसा है कि ये अदालत को करने वाली यहूदियों की एक बहुत बड़ी एक जो इसको लीड करती थी, जो जमात थी, वो 70 बंदों पर मुश्तमिल थी। कितने बार? 70 बंदों पर मुश्तमिल थी। और इसके बाद जो था, और ये बुजुर्ग थे, और जो इसकी ऐसा है कि इसका हिसाब किताब लेते और फतवा देते थे, और ये यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत थी। इसको कहते सनहेड्रिन अदालत, यानी अदालते उस्मा, अदालते उस्मा इसे कहते थे, यानी सबसे बड़ी अदालत, सबसे बिग ऐसा अदालत जिसको समझा जाता था। और इस अदालत के अंदर खुदा ने यीशु मसीह को मिलाया गया, और इसके ऊपर ये फतवा दिया गया, और ये ऐलान किया गया कि इसको सलीब दिया जाए, बेशतर के इसको सलीब दिया जाए। अब सीखते हैं कि अब यीशु मसीह के इस क्रॉस के ऊपर जाने की क्या जरूरत थी, क्या वजह थी, क्योंकि बाइबल के अंदर इसके बड़े मीनिंग्स हैं, बाइबल के अंदर बड़े फतवे लगे। जो सबसे बड़ा फतवा ये लगा था कि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था कि मैं और बाप एक है। बोलो, मैं और बाप यीशु मसीह के ऊपर जो सबसे ज्यादा फतवा ये लगाया था, क्योंकि कहा था मैं और बाप एक हूँ, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, क्योंकि मैं बाप में से निकल दुनिया में आया हूँ, क्योंकि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। लेकिन सवाल यह है, अब ये सलीब की जरूरत क्यों पड़ी खुदा यीशु मसीह को? आपको पता है कि जब आपने रोजे रखे तो आप कहां गए? यीशु मसीह ने जब रोजे रखे तो आप कहां जाते? आज कहां जाते? बोलो तो सही, कितने जाते? रोजे रखे यीशु मसीह ने, कितने गए? जंगल से गए। इट मींस क्यों गए? व्हाट मींस क्यों? इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह को जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? क्या वजह थी? क्या स्वभाव था? क्यों जंगल के अंदर? हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है, आमीन, कोई रेवलेशन है, कोई मकाशफा है, कोई छुपी हुई बात है। यीशु मसीह का सीन क्योंकि यहूदियों के अंदर जब ये सारा सिलसिला होता था ना जनाबे आला, और वहां एक सिस्टम था, और जब दो बड़े ऐसा लेते और एक को जंगल में छोड़ा जाता था, एक को सबा दिया जाता। यीशु मसीह ने सलीब से जाने से पहले जंगल का भी दौरा किया, हालेलुया, जंगल का भी दौरा किया, ताकि शरीयत के मुताबिक बेगुनाह निकले। शरीयत के मुताबिक ऐसा है, उसके अंदर कोई फतवा ना लगाया जाए, कोई बात की ऐसे कमी ना रखी जाए। आप भी जंगल के अंदर गए, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, और जंगल के अंदर जाकर उसने भी अपनी इसके सर को कुचला है, हर सवाल का जवाब कलाम में से दिया है। और क्योंकि इसलिए आप जंगल के अंदर गए, और आपने क्योंकि आपको पता था कि मैंने शरीर के ऊपर जाना है, क्योंकि बाइबल ये बताती है, खुदा की कलाम के अंदर लिखा, जब
अगला वीक बड़ा मसरूफ है इबादत का, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा जैसे अपनी शिकतों से ये कहा था और अपने लादिया अदालत के अंदर बेस और उसके बाद लादिया अपनी शिकतों के साथ और हैकल से गुजरते हुए कहा था तुम इस हैकल को डालो, मैं इसे कितने दिनों में खड़ा कर दूंगा। यहूदी कहने लगे वाह भी वाह 40 साल लगे। कितने? तू कहता है 3 दिन के अंदर, लेकिन उनको पता नहीं था इसके पीछे प्रकाश और है। सलीब बेसिक कलाम नहीं है। और मैं एक बड़ी खास आपको बात कहता हूं, खुदा के खिलाफ के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए सिंपल ये ऐसा है निशान है, लेकिन जो ऐसे नजात पा चुके हैं, बरकत पा चुके हैं, उनके लिए फतहमंदी है, उनकी बादशाहियत है, उनके लिए कामयाबी है, उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बशारत है। कई बार आप गुड फ्राइडे वाले दिन ब्लैक कपड़े पाए होंगे अब गुड फ्राइडे वाले दिन पाए होंगे ना, कई ने स्वाइन तो ब्लैक पाए होंगे नहीं कि केड़ा पाउन का शौक रखता। अच्छा लेकिन सुने, मैं कहता हूं कि यीशु मसीह अरे सलीब पे है, खाली है। अब गुड फ्राइडे इट मींस है, लेकिन गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए नजात का है, मेरे और आपके लिए जिंदगी का दिन है। और इसलिए ये जो सलीब है, एक और बात बताओ, सलीब अगर आपने पहनी है, आपने खरों के ऊपर इसका ऐसा एक निशान लगाए, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज बनी हुई ना पहने, जैसे वो स्टैचू जो बने होते हैं, अगर उसको पहनते हैं तो आप गुनाह करते हैं, आप यीशु को फिर सलीब पर लेकर जाते हैं। आपने पहनी है तो वो सलीब खाली होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जैसी आपने ये शिकत सीखा था कि मैं अभी मसरूफ किया जाऊंगा, और मैं कहता हूं जहां खुदा के कलाम की बात आती है, खुदा की नहर की बात आती है, खुदा की कुदरत की बात आती है, खुदा की अपनी बात आती है, लेकिन वहां खुदा भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपको याद आएगा जब पतरस ने कहा खुदावन अगर ये काम हुए ना तो ठीक है, यीशु पतरस ने क्या अगर खुदावन तो पढ़िया ही ना किसी के मुबशर किसी के बारे में बचा ले एक शैतान आई तो वो आखेगा सारे सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जहां खुदा के कलाम की बात है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरी बात की तरफ की समझ आ रही? खुदा कलाम की कॉम्प्रोमाइज नहीं खुदा करता, कलाम ही नहीं करता, क्योंकि वो अपने कलाम को सबसे ज्यादा इज्जत देता है। लेकिन पतरस ने ये कहा था, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा था नो ऐसा नहीं है, बल्कि तू आदमी की बातों पे ज्यादा ध्यान लगाता है, हमने खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाना है। क्योंकि बाइबल के अंदर जब आपने ये कहा था कि मैं सलीब होने जाने वाला हूँ और मैं मसलूब होने जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बाइबल के अंदर लिखा आप पहली रात अपने गतसमनी के अंदर गुजारी। जब आपने तो गतसमनी का मतलब ही है दुखों की जगह, और जब आप गतसमनी के अंदर जाते हो तो गतसमनी के अंदर तारीख और मेडिकल बताती है कि जब आप बैठे हुए थे, आप प्रे कर रहे थे, आप दुआ कर रहे हैं, और आप इस बात की ऐसा है कि कुदरत को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कलमों पे बात करें तो वो आपको सारी बातें वहां जो है वो नजर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप वहां जाते हैं आप बैठकर प्रेयर कर रहे हैं, और बाइबल के अंदर लिखा है आपका खून आपका पसीना बड़ी बड़ी बूंदे बनकर खून की माने टपक रहा है। लेकिन इसका मतलब ये था, साइंस बताती है जब इंसान का पसीना उस वक्त खून बनता है जब उसकी ये शरानें, मेडिकल बताती है ये शरानें फट जाए तो उसका पसीना जो है वो खून बनता है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अब इसका यही मतलब था कि यीशु गतसमनी बाग के अंदर ही मर जाए। वो यही चाहता था, वो चाहता था कि आप उस अल्टर पर, आप उस क्रॉस के ऊपर ना जाए, आप वहां ना जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और बाइबल के अंदर लिखा है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और बाइबल में लिखा है बाप अगर हो सके तो ये पहला मुझसे फैल जाए, फिर अगले का मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए, मज़हबों के लिए, सब गुनाहगारों के लिए सलीब को बचा देने वाला हूं। मेरा सफर यही नहीं है, मैं आगे जाने वाला हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप वहां पहुंचते हैं तो बाइबल मुकद्दस का लिखा आपने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बल्कि सालमों ने जब उस पकड़ के कटहरे के अंदर लगाया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता
एक काम थे, एक काम लगाते थे, लगाते उनकी डायरियों के अंदर, उनके कानून के अंदर 40 कोड़े थे, लेकिन वो काम इसलिए लगाते थे गलती से एक ज्यादा। लेकिन आइए एक और बात सुनिए, जो खुदावंद यीशु मसीह के जिसमें अक़दस पर लगे और वो कोड़ों की 7 लड़ियां थी, उसके अंदर शीशा, लोहा और हड्डी, ये खास उन्होंने बनाए हुए थे, ये खास उन्होंने उन मुजरिमों के लिए रखे हुए थे। लेकिन बाइबल और तारीख बताती है जब एक काम 40 कोड़े लगते थे, वो कोड़ा जब लगता है दर्द नहीं देता था, लेकिन जब वापिस आता था वो सारे जिस्म के उस हिस्सों को नोच कर ले आता था। लेकिन रूह की तारीख बताती है और आपका जिस्म इतना लहू लहान हो गया था, आप अपनी क्रॉस उठाने के भी लायक न रहे, आप उसको भी उठा ना सके। और बाइबल के अंदर लिखा है आप अपनी सलीब उठाते हैं और फिर गिरते हैं, फिर उठाते हैं और फिर गिरते। बड़ा हजूम था, बड़े लोग थे, लेकिन शराब गरीबी को उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा आप इसकी सलीब उठाएंगे और उठाने के बाद आपको एक कलवरी पर जाएंगे। लेकिन तारीख और रूम की तारीख बता दिया, एक मसंद बयान करता, अगर सबसे ज्यादा मार खाने के बाद जिंदा रहने वाला कोई शख्स है तो उसका नाम यीशु मसीह है। इतनी मार खाने के बाद वो झूठ भी कहता, बाप मैं तो कुर्बानी के लिए जाने वाला हूं, मैं तो बाप लोगों के लिए जान देने वाला हूं, बाप मैं तो सलीब के ऊपर जाने वाला हूं। लेकिन आप जब क्रॉस पिस्टल के रिश्ते में आगे बयान करो, औरतें आकर मेरे आका के लिए रोती है, जो हीन हुई थी, मकस्सा मरियम थी, मरियम मगदलीनी थी, परसली और औरतें थी जो हील हुई थी, परसल कलीसिया थी। मेरे आका ने एक लफ्ज कहा था, वो आपके सुपुर्द दिल करने लगा, कहा जब हरे की दरख्त के साथ ऐसा किया जाएगा तो तुम सूखों के साथ ऐसा क्यों ना किया जाएगा। कैसा होगा वो वक्त, कैसा होगा लम्हात, कैसी होगी वो बात, कैसा होगा वो सफर, कैसी हो वो सवारी, कैसी हो वो मंजिल। लेकिन ठीक तारीख इस बात की गवाह है। और बाइबल मुकद्दस तारीख बताती कि 9 बजे आपको पकड़ लिया था। 9 बजे के बाद ऐसा 8 पकड़ा तो उन्होंने पहले था, लेकिन 9 बजे सलीब का टाइम था। लेकिन 1 घंटा कंटिन्यू यीशु मसीह चलते रहे और 1 घंटा इतना सालों ने मारा और इतनी सेहत सीख थी मेरे खुदावन की। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मैं क्रॉस के ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने और आपने कमिटमेंट की है कि मैं भर रहा हूँ। इसलिए खुदावन पाक खुदा फरमाते हैं, यूहन्ना रसूल अपनी अंजील के अंदर बयान करता है, पहला बाब 29 आयत के अंदर लिखा है, वो कहता है देखो ये खुदा का, किसका बना है, किसका बना है। यूहन्ना रसूल पहली अपनी अंजील पहला बाब 29 राइट साइड पे लिखता है, कहता है ये खुदा का, और बेसिकली वो यीशु मसीह को अपने दरमियान खड़ा हुआ देखता, कहता देखो ये खुदा का बन रहा है और ये खुदा का वो भर रहा है और जो बेऐब है जिसके अंदर कोई सामने ही है। क्योंकि यहूदियों ने जब ऐसा दानित उस्मा के पास लाया तो कहा तू क्या कहता है, उससे कहा यीशु मसीह बाइबल में लिखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसने एक बात से पूछा कि क्या तू अपने आप को खुदा का बेटा कहता। मेरे आका ने कहा तू खुद कहता है, कोई इंसान साबित ना हो सका। ਉਹਦੀ ਫਿਰ बीवी ने बादशाह ने आख्या कि तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ काम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ना करी, तो इतने को फतवा ना नहीं। उससे कहा मैंने ख्वाब में देखा है। आज भी वो मरते मरते भी बुझा लेता है, हालेलुया, और इन लोगों को सिखा देता है। लेकिन बाइबल के अंदर का सबके सामने से पानी मंगवाया, मंगवाने के बाद अपने हाथों को धोया और फतवा लगाया इससे सलीब दिया जाए। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ इसके जगह 2 बंदे थे, एक बराबा और एक, बोलो तो सही, एक बराबा और एक यीशु। तो उन्होंने कहा किसको छोड़ो, ये बड़ी मुकाशफे की बात, किसको छोड़ो, बराबा। बराबा का मतलब होता है बाप का बेटा, बाप का, बराबा का जो मतलब होता है बाप का बेटा। यानी एक यीशु मसीह भी क्या बाप का बेटा है या नहीं। एक रास्तबाज बाप का बेटा सलीब के ऊपर जान दे दे ताकि गुनाहगार बराबा बच जाए। यीशु मसीह ने ये कहा था, लेकिन उन्होंने बराबा को छोड़ दिया, यीशु को सलीब दिया जब सलीब देने वाले थे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो सलीब की कुदरत है, जो मैं कहता हूं आपको जब सलीब देने वाले थे और आपको देख चुके थे और जब 9 बजे का टाइम मुकम्मल हो चुका था और जब आपको क्रॉस के ऊपर लटका दिया था, एक दाएं और एक बाएं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है
اس کے ساتھ ہی ہیکل کا پردہ جو آگے ہم جا کر پڑھنے والے ہیں جو یہاں لگا ہوا تھا وہ پھٹ کر 2 حصے، اور وہ بتاؤں کتنا موٹا تھا، 4 انچ موٹا اور 70 فٹ لمبا تھا. یہ دین ہے، اتنا موٹا وہ بنتا ہے. وہ پردہ جو کہن سائڈ پہ کر کے قربانی کے لیے جاتے تھے، اور وہ جب آپ نے کراس کو پر جان دی تو وہ بائبل کے اندر لکھا وہ بیچ سے پھٹا. ہاللیلویہ، وہ بیچ سے پھٹا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک اور بات بتاؤ، جب میرے خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا، اچھا ایک ایسا ہے، ایک بہت بڑا ایک ایسا ہے جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ صلیب کو پیار سے نہیں رکھا گیا تھا، ایک بہت بڑی کھدائی تھی اس کے اندر رکھا گیا تھا، رسوں سے پکڑا گیا تھا، اور جیسی پتھر سے صلیب ہٹتی ہے ایک جھٹکا لگتا ہے. پوری انسانیت جو تھی اور وہ اس کے اوپر تھی، کیونکہ لکھا ہے میں قوموں کے لیے جانے دیتا ہوں، میں قبیلوں کے لیے جان دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے صلیب کے اوپر جو کلمے بولے تھے اور جب یہ کہا تھا تمام ہوا، اور جیسے ہم صلیب کے اوپر جان دیتے ہیں، کہتے باپ نے اپنی روح میرے ہاتھوں میں سونپا، اور یہ کہنا ہی تھا. اور جو مسیح میں موئے ہوئے لوگ تھے اور وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. سب تاریاں میرے خدا کے لیے. اگر وہ مرتا بھی ہے او مرے بھی تو مردے تے جو جی اٹھے تو پھر کی بنے گا؟ پھر تو کمال ہوئے گا نا، پھر تو جمال ہوئے گا، پھر تو حسن کمال ہوئے گا. بائبل کے اندر لکھا ہے، آج لیکن سوال وہی ہے، ان کے لیے ایسا نجات ہے جس پہ بلیو کرتے ہیں. آمین. یاد نہیں ہے، یہ ہماری ایک خاص قدرت ہے کہ لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کو نزدیک بے وقوفی ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ صلیب کے سبب سے ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم اپنی جد بدلواں تنگ کر خدا باپ اور بیٹے اس کے نام ڈر لگے نہیں رہے خدا باپ اور بیٹے اس کے، ہاں سر چ پیڑ ہے خدا باپ اور بیٹے اس کے، ان جی لیٹ ہول کے اندر کر لیں خدا باپ اور بیٹے اس کے نام. ہمیں ملا کیا ہے؟ آئیے بائبل کے روشنی میں یہ سیکھتے ہیں ہمیں کیا ملا ہے. پہلی بات، صلیب کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں. آمین. پہلے آپ اس بائبل کو اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ اس جگہ پہ نہیں آ سکتے تھے، آپ کو قربانیاں دینی پڑتی تھی، لیکن آپ نے وہ سارا کام جو ہے وہ مکمل کیا. آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ کرسیوں کہتا اب یہ ہوا کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. کرسیوں دبا اس کیسے ہے کہ 14-15 کرسیوں دبا لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز اٹھا ڈالی. آمین. حکموں کی وہ دستاویز اٹھا. اچھا جی تسی کسی نے پیسے دے رہے دکان دے یا کپڑے والے دے یا کسی بندے دے باقی جاؤ تہاڈا کھاتا صاف ہے لکیر مار دی. جب پیسے دین تو بعد تسی کدی لکیر تو بغیر نہیں چھڈ کے آؤ کہ بھائی کھاتا کٹ. ایسا ہے یا نا؟ حکموں کی وہ دستاویز، دیکھا حکموں کی وہ دستاویز اٹھا ڈالی جو ہمارے نام پر، ہمارے بولو ایتھے انگلی رکھو، میرے نہیں رکھنی آپ نے رکھنی جو بولو ایتھے انگلی رکھو، ایتھے انگلی رکھو یار آپ نے دل دے رکھو رکھی رکھنی پھر تھلے کر لیں رڈ پہ اندر. اور حکموں کی وہ دستاویز اٹھا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی. وہ کس کی تھی؟ وہ ہمارے پریواروں کے خلاف تھی، ہماری بیوی کے، ہمارے بچوں کے، ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے سارے پریواروں کے خلاف تھی. اور اس کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر اور سامنے سے ہٹا دیا اور صرف حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر اس کا بالوالا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے اس پر فتح یابی کا شاہ گانا بجایا. آمین. ہاللیلویہ. اور صرف وہ ساری مخالفتی جو شریعت کی میرے اور آپ کے اوپر تھی اس کو مٹا ڈالا. آمین. پہلی بات ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر کوئی FIR نہیں ہے شریعت کے مطابق، ہمارے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے شریعت کے، ہمارے اوپر کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہے شریعت کے مطابق. اس سے وہ ساری حکموں کی وہ دستاویز اٹھا ڈالی. ایسا دوسری بات، صلیب کی قدرت سے ہماری خدا سے صلح کرا دی. آمین.
आमीन। तो इफ्सियों के खत के अंदर देखते हैं, इफ्सियों, तो इफ्सियों उसका 2 बाब उसकी 15 से 16। चनाची उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़वाब्तों के तौर पर मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करे। अब खुदा ने कहा अब तुम डायरेक्ट बाप से मेरे नाम से मांग सकते, ऐसा है या ना? कहा जो तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये कितनी अज़ाज़ की बात है, ये कितनी खुशी की बात है, ये कितनी ऐसा है हमारे लिए हैरत अंगेज बात है। फिर आगे लिखा है और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके स्वरूप से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिला दिया। अब मैं और आप खुदा से मिल गए, आमीन। मेरा और आपका ताल्लुक खुदा से लिखा, हम ले पाले के बेटे हैं, आमीन। हम उसे बाप यानी ऐ अब्बा कहकर पुकारते हैं, यानी अब्बा किसी कौम के पास ऐसा नहीं है, जास सर मसीहों के पास है, हम खुदा को बाप कह सकते हैं। हालेलुया। ये किसकी कुदरत है? सलीब की है, आमीन। तीसरी लास्ट बात, सलीब की कुदरत से हम आजाद किए गए और हमारी अबदी कुर्बानी हुई। आइए अबरानियों के खत के अंदर इस बात को देखते हैं कि अब ये हुआ क्या है। ये थोड़ा सा टीचिंग भी है ताकि हम उसको सीख सके। और अब देखेंगे अबरानियों उसका ऐसा है 8 बाब, सॉरी इसका 9 बाब, 8 में भी लिखा है लेकिन हम 9 देखेंगे। 9 बाब उसकी 12 से ऐसा है 14। क्या लिखा है? क्योंकि हमें हमारी कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हुआ, हमारे परों को लाना खत्म हुआ, हमारे बछड़ों को लेना खत्म हुआ। क्या लिखा है? और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हुआ और एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्या कराई? अबदी हुक्मों की वो दस्तावेज उठा डाली जो हमारे नाम पर थी। शरीयत के मुताबिक हम पे कोई एफआईआर नहीं है, आमीन। फिर आगे क्या लिखा है? और बकरों और बैलों के खून और गाय की राख और नपाकों पर छिड़के जाने से सारी पाकीज़गी हासिल होती है। और तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया है, तुम्हारी दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे, आमीन, आमीन। छोटा आमीन। ये है सलीब की कुदरत। उस समय क्या से क्या बना दी, उसने हमें कूड़े से उठाया और तख्त पर बिठा दिया ताकि हम उसको ऐ बाप कहकर पुकार सके। इसलिए वो खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करता है, कहता है तवज्जो के साथ आइए उसी आयत की चंद बातें फिर इसको वाइंड करते हैं। क्योंकि सलीब का पैगाम कहता क्यों के लफ्ज यहाँ क्यों के ना इसके बीच में कुछ खास है। क्योंकि हम कहते हैं ना आएंगे लेकिन आएंगे बोलो तुझे आएंगे अगला विच लेकिन है ना, एदा मतलब तुझे को नहीं होना, लेकिन टाइम लगा। लेकिन क्योंकि सलीब का पैगाम कि कहता है वो क्यों का मतलब होता है वो सारी बातों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हलाक होने वालों के नसीब तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नसीब खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है हकीमों की हिकमत को नेस्त और अकलमंदों के अकल को रद्द करो। लिखा है कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीर, कहाँ के जहां का बाहिस करने वाला। क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना। इससे हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम खुदा से हमारा मुलाकात हो गया है, खुदा से हमारा ताल्लुक जुड़ गया है। और ये बात सुनिए, ये जो 2 कंधे हैं ये आदमी का आदमी के साथ कॉन्टेक्ट है, ये नीचे से ऊपर का आदमी से खुदा के साथ कॉन्टेक्ट है, ताकि हम उसकी तलीम को बांटें, उसकी तलीम को अपनी लाइफ के अंदर लें, उसकी तलीम को अपनी जिंदगी के अंदर लें। सलीब आम नहीं है, सलीब बहुत खास है। खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।